یہ میرا نیٹورک ایشو چل رہا تھا چلو آؤٹ ہو گیا تھا. جی جی اسکرین آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے. اسکرین آ رہی ہے نا؟ ٹھیک. تو یہاں ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ تھوڑا سا بتا دیں. جی جی آ رہی ہے. آفتاب جی بھائی جی آ رہی ہے. آ رہی آواز. 1000 روپے میرے پاس ہے اور ہم ابھی اگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ سی این سی میں ہم کیسے کام کریں گے. سی این سی میں 1000 روپے میرے پاس ہے تو 100 روپے کا شیئر ہم 10 خرید سکتے ہیں. 1000 ہم نے خریدا. اب پرائس اس کا 102 روپے ہو گیا ہے. تو اگر ہم 10 شیئر کو پھر بیچ دیں گے تو 120 روپے میں ہم بیچیں گے. 1020 روپے میں بیچیں گے تو ہمارا پروفٹ کتنا ہو گیا؟ 20 روپیز، یعنی 2% ہم نے پروفٹ کمایا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اب اسی کو ہم لیوریج سے سمجھتے ہیں کہ لیوریج کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے وہی میرے پاس 1000 روپیہ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس 100 روپے کا پرائس کا شیئر ہے. تو ہم کو لیوریج کتنا دے رہا ہے؟ اوپر ہم نے لکھا لیوریج 10 ٹائمس دے رہا ہے. وہ 10 ٹائمس دے رہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں 9000 روپے دے رہا ہے. 9000 روپے دے رہا ہے. تو ٹوٹل اماؤنٹ میرے پاس کتنا ہو گیا؟ 10,000 روپے ٹوٹل ہو گیا. تو اب ہم 10 شیئر نہیں بلکہ 100 شیئر یہاں پر ہم خرید سکتے ہیں ادھار لے کر. تو ہم نے ٹھیک ہے بھائی خریدا، ادھار لے کر 100 شیئر ہم نے خرید لیا. 10,000 روپے ہم پورا لگا دیے اس میں اسٹاک میں. اب اگر سیم 100 روپے کا اگر شیئر ہے 102 روپے میں گیا تو ہمیں کتنا ٹوٹل اماؤنٹ بیچنے سے ملے گا؟ 10,200 روپیہ. یعنی پروفٹ ہم کو ہوا 200 روپیہ، یعنی 20% پروفٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ لیوریج جو 9000 ہم نے لیا تھا اس کو ہم کو ریٹرن کرنا پڑے گا. زیرودا کو وہ ریٹرن ہو جائے گا اس کو. تو پیسہ آپ کے پاس 1000 ہی تھا لیکن یہاں پر تو آپ نے 20 روپے کمایا تھا اور یہاں پر اسی پیسے سے آپ 200 روپے بنا لیے. دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی میں تو بڑا کمائی ہو رہا ہے. تو یہ تو فائدہ تو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 9000 روپے آپ نے اس کو واپس کر دیا اور 200 روپے آپ اپنے گھر لے کے چلے گئے جو 20% ہے. لیکن یہاں پر آپ نے کو صرف 20 روپے ملا تھا جو اب صرف 2% تھا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے پچھلے اس میں پڑھا کہ جب لیوریج کے ساتھ اس نے لیا تھا تو 200 روپے کمایا. اب چلتے ہیں کہ اگر اسٹاک پرائس نیچے چلا گیا تب کیا ہوگا وہ دیکھیے ابھی آپ. ٹھیک ہے. سیم چیز کو اب ہم نے وتھ لیوریج لاس ویری بگ. لاس کیسے ہوتا ہے وہ دیکھیں کہ سیم ہے 100 روپے کا شیئر تھا. 100 کوانٹٹی میں آپ نے خریدا. آپ کا اپنا پیسہ 1000 تھا. 9000 آپ کو زیرودا نے دیا. 10,000 میں آپ نے پورا شیئر 100 شیئر خرید لیا. اب یہ شیئر بجائے اوپر جانے کے نیچے چلا گیا اور 90 روپے اس کا پرائس ہو گیا. اب چونکہ یہ انٹرا ڈے ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر کے تو رکھ نہیں سکتے ہیں کہ چلو کل دیکھ لیں گے پرسوں دیکھ لیں گے ہے نا اور بیچ دیں گے. کوئی نہیں، آپ کو تو سیم ڈے میں نکلنا ہی نکلنا ہے. آپ نے بائی کیا تو سیل کرنا ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوا؟ 90 روپیز چلا گیا پرائس. تو اب اگر 90 روپیز پرائس چلا گیا 100 شیئر آپ کے پاس ہے تو اب اس کو بیچے گا تو کتنا میں بیچنا پڑے گا آپ کو؟ ٹوٹل 9000 میں بکری ہوگا یہ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہ 9000 تو آپ کا پورا جو اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آئے گا بیچنے کے بعد یہ تو آپ کا ہو گیا زیرودا والا لے لے گا کیونکہ اس نے آپ کو لیوریج دیا تھا 9000. اب آپ کا پورا 1000 روپیہ کا جو پونجی تھا پورا کا پورا لاس ہو گیا. ٹھیک ہے. پورا کا پورا لاس ہو گیا ہے. تو اس طرح سے لوگ پیسہ پھر یہاں پر گواتے بھی اسی طرح سے. تھوڑا سا یہاں لالچ ملتا ہے لیکن یہاں پر سارا پیسہ گنوا کے چلے جاتے ہیں. اپنی پونجی پورا کا پورا آدمی نقصان کر کے یہاں سے نکل گیا. یہ لیوریج کے نقصان ہے صرف سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا. تو یہ کام ہمیں کرنا نہیں ہے. اب آتے ہیں دیوبند کے فتوے پہ. دیوبند کا فتویٰ جو ہے مختلف ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ علماء اکرام ہے. اس پر ابھی مزید ہمارے ساتھ علماء اکرام کی ایک ٹیم بنی ہے جو ہم اس پر مزید اور بھی تحقیق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہاں ہم نے آپ کو کچھ نمبر یہاں رکھا ہے جو آگے چل کے یہاں پر اس کے پورا فتاوا کا نمبر وغیرہ سب سائٹ پہ ہے. وہ اب جا کے دیکھ سکتے ہیں فتاوا کے نمبر کے ساتھ. یہاں ہم نے لکھا ہے کہ ایک فتاوا نمبر 158441 میں کیا لکھا ہے؟ حکم کا مدار رزق کے منتقل ہونے پر ہے. خلاصہ ہم نے لکھا، آگے آپ کو تفصیل بھی دکھائیں گے. کسی نے سوال کیا تھا انٹرڈے کے بارے میں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر دیوبند کے فتاوا میں لکھا ہے کہ حکم کا مدار رزق کے منتقل ہونے پر ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر سی این سی میں آپ نے خرید لیا ہے شیئر کو تو رزق تو آپ کے اوپر منتقل ہو گیا ہے. وہ
भले डिलीवरी 2 दिन के बाद होगा, लेकिन रिस्क तो मुंतकिल हो गया है। तो ठीक है, इस फतावा में लिखा है कि रिस्क मुंतकिल होने पर वो जायज़ हो जाता है। आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर फतावा नंबर 159081, अगर शेयर की खरीदारी के बाद रिस्क और ज़मान की मुंतकली खरीदारी की तरफ हो जाती है, यानी अगर कंपनी को नफ़ा या नुकसान हो तो इसका मालिक खरीदार तस्वुर किया जाए, तो इस तौर पर रिस्क की मुंतकली के बाद शेयर को आगे फ़रोख्त करना जायज़ होता है। ठीक है? यहाँ भी ठीक है, सही बात है, ये भी जायज़ होता है। लेकिन दूसरा एक फतावा फिर यहाँ पर देखिए 159081, इसी में दूसरा भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है। लिहाजा जब तक डिलीवरी ना मिल जाए इस वक्त तक आगे फरोख्त ना किया जाए। ये दोनों एक ही फतावा में लिखा हुआ है, दोनों से। अभी आगे चल के आपको हम दिखाएंगे। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन करने वाली बात है। अवाम इससे कन्फ्यूज हो रही है कि क्या करे बेचारा अवाम। अवाम फिर यहाँ पर आके क्या करे, ठीक है। यहाँ 3 फतावा है, ये दोनों एक ही फतावा के हिस्से में है। ये नीचे वाला दोनों एक ही फतावा के हिस्से में है, और ये वाला एक सिंगल फतावा जिसमें ये लिखा हुआ है। ऐसा इसमें क्या लिखा है 149364 में, ये दोनों सेम फतावा है। ज़मान यानी शेयर खरीदने के बाद जब रिस्क मुंतकिल हो जाए, तो शेयर को आगे फ़रोख्त करना जायज़ है, ख़ास डिलीवरी ना हुई हो। ये भी लिखा है, ठीक है? ये भी लिखा है। लेकिन इसके साथ फिर यहाँ लिख दिया है, ताहम एहतियात का तकाज़ा ये है कि डिलीवरी के बाद आगे फ़रोख्त किया जाए। तफ़सील के लिए देखा जाए इस्लामत जदीद मुआशी मसाइल। तो ये एक ही फ़तावा में 2 तरह की बातें लिखी हैं, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये पहला फ़तावा है, जिसका खुलासा ये है कि हुक्म का मदार रिस्क के मुंतकिल होने पर है, जिस पर हमें बिल्कुल इत्तेफ़ाक है कि हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है? यानी ये शेयर क्या लिखा है, सवाल ये है कि शेयर मार्केट में 2 तरह की खरीद और फ़रोख्त होती है। इसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया। इस शक्ल में मुश्तरी ने जो शेयर खरीदा वो 2 दिन के बाद इसके अकाउंट में जमा होगा, यानी इसकी मिल्कियत में आएगा। लेकिन शेयर की खरीद मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद सारा नफ़ा या नुकसान मुश्तरी का होता है और बाय का दखल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ मिल्कियत का फ़र्क होता है। लेकिन जैसे ही बाय ने वो शेयर बेचा, इसकी मिल्कियत ख़त्म हो जाती है, जो टेक्निकली तौर पर 2 दिन के बाद मुश्तरी के मिल्क में आएगी। तो क्या इस सूरत में मुश्तरी इस शेयर को आगे इसी दिन किसी को बेच सकता है? इस शक्ल में आप सारे नफ़े नुकसान का मालिक वो मुश्तरी होगा। बाय का दखल कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाएगा और वो मिल्कियत ऑटोमेटिक 2 दिन के बाद मुश्तरी की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। पहला नंबर उसका सवाल ये था। दूसरा, शेयर की मिल्कियत 2 दिन के बाद मुश्तरी की मिल्कियत में आने के बाद क्या वो उसको 5 या 10 दिन के बाद बेच सकता है? 2 सवाल इन्होंने किया। तो पहला सवाल का जवाब ग्रीन में हमने लिखा है, जिसमें उसका वही खुलासा है कि हुक्म का मदार रिस्क मुंतकिल होने पर, यानी शेयर खरीदने के बाद अगर उसका रिस्क मुश्तरी की तरफ मुंतकिल हो गया तो उसको आगे फ़रोख्त करना जायज़ होगा। ख़ास शेयर्स की डिलीवरी ना हुई हो, लिखा क्लियर लिखा है। हुक्म का मदार रिस्क की मुंतकिल होने पर है, इसलिए कि असल हुक्म ये है कि किसी चीज़ को खरीदने के बाद कब्ज़ा से पहले पहले आगे फ़रोख्त करना जायज़ नहीं, और शेयर में कब्ज़ा का तहक्कुक रिस्क के मुंतकिल होने से होता है। लिहाजा मुश्तरी के लिए शेयर्स खरीदे के फ़ौरन बाद अगर रिस्क भी मुंतकिल हो जाता है, तो नफ़ा नुकसान और सारी ज़िम्मेदारियाँ मुश्तरी से मुतल्लिक हो जाती है। तो मुश्तरी के लिए इसको आगे फ़रोख्त करना जायज़ होगा। ठीक है? यहाँ जायज़ हो गया। अब आगे चलते हैं। जो हमने ऊपर खुलासा लिख दिया था, यहाँ वही सवाल को 2 तरह से पेश किया गया, जो यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं फिर। इसमें भी उसी तरह का सवाल है, तो यहाँ क्या लिखा है, शेयर खरीदने के बाद जब रिस्क मुंतकिल हो जाए तो शेयर को आगे फ़रोख्त करना जायज़ है, ख़ास डिलीवरी ना हुई हो। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे फिर एक शोसा ये छूट गया है कि ताहम एहतियात का तकाज़ा ये है कि डिलीवरी के बाद आगे फ़रोख्त किया जाए। तो अब ये किसको फ़ॉलो करे भाई अवाम? अवाम किसको फ़ॉलो करे? आगे फ़रोख्त कर दे या एहतियाती करते रहे? एहतियाती करते रहे तो हमको तो फिर वहाँ नुकसान हो, अगर शेयर नीचे चला गया तो मेरा तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। ये दूसरा फतावा, इसमें थोड़ा-सा दोनों बात लिखी हुई है। ये तीसरा फतावा है। इसमें लिखा है जब तक डिलीवरी ना मिल जाए इस वक़्त तक आगे फ़रोख्त ना किया जाए। पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पढ़ लीजिएगा उसको। यहाँ क्लियर लिख रहा है कि जब तक डिलीवरी ना हो आगे फ़रोख्त ना की जाए। तो भाई अब फिर किसको फ़ॉलो करे आदमी? देखिए आगे यहाँ क्या लिखा है, अगर शेयर्स की खरीदारी के बाद रिस्क और ज़मान की मुंतकली खरीदारी की तरफ हो जाती है, यानी अगर कंपनी को नफ़ा या नुकसान हो, इसका बिल खरीदार तस्वुर किया जाएगा, तो इस तौर पर रिस्क की मुंतकली के बाद शेयर को आगे फ़रोख्त करना जायज़ है। तो एक ही फ़तवा में दोनों बातें लिखी हुई हैं।
तो अब मेरा अब उलमा कराम से ये सवाल है कि आप हजरात जो फतावा लिखते हैं देवबंद वगैरह में या जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो चूंकि अवाम हूँ ना, मैं तो कोई मदरसे के लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं अवाम हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि जो हमारे बुजुर्ग वहाँ फतवा दे रहे हैं, लिख रहे हैं, वो चूंकि फील्ड में नहीं होते ना, तो उनकी फील्ड का उनको इन्फॉर्मेशन पूरा उनके पास नहीं होता है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। वो आप मेरे ख्याल से अभी आप सवाल जवाब करिएगा तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचता नहीं है। तो जितना इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है वो उसी के हिसाब से वो फतवा लिख देते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप उलमा इकराम आप मार्केट में आप देख रहे हैं, रोजाना इस पे कारोबार कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि नफा नुकसान कैसे हो रहा है, रिस्क कैसे मुंतकिल हो रहा है। तो अब जब ये बात आप उन तक सही तौर पे पहुंचाइएगा, तब मेरे ख्याल से उनके फतावा भी उसी तरह से क्लियर कट सामने आएंगे, आवाम कंफ्यूज नहीं होगी। वरना अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सीएनसी में के मतलब इंट्राडे करना कैसा है या सीएनसी कैसा है। तो देखिए, इंट्राडे के अल्फाज से सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्राडे सीएनसी में भी आप इंट्राडे कर सकते हैं ना, इंट्राडे का मतलब सेम डे में बेचना खरीदना है। सीएनसी में भी सेम डे में खरीदना बेचना हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन इंट्राडे का जो पूरा शक्ल है, जो हमने अभी यहाँ आगे पिछले पिछले स्लाइड में आपको बताया, उसमें पूरा जुए की शक्ल और भी बहुत सारा जुए के कारोबार होता है। तो वो तो बिल्कुल नाजायज है, नहीं करना है। लेकिन सेम डे में खरीद के किसी सामान को हम ना बेचें, ये तो कोई तुक नहीं बनता है। इस तरह इसका एक एग्जांपल जो मेरे ज़हन में और बाज़ उलमा से भी हमने सुना है कि अगर मान लीजिए कि हम शहर से गाँव से शहर में आए और हमने किसी कोई मतलब प्याज़ का एक ट्रक खरीदा है, तो हमने कैश देके प्याज़ खरीद के अपने ट्रक पे लोड कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ से लोड करने के बाद ये ट्रक जो है मेरे गाँव में जाने में 2 दिन लगेगा। वो 2 दिन के बाद जब मेरे गाँव में पहुँचेगा तो उसको फिर हम वहाँ बेचेंगे। तो अब आप सोचिए कि जब हमने पैसा कैश दे दिया है शहर में प्याज वाले को और हमने अपने ट्रक पे लोड कर लिया है सामान को, अब ये चलेगी तो अपने पहुंचेगी मेरे गांव में। अब रास्ते में अगर मान लीजिए कोई हमें ग्राहक मिल गया अच्छा, तो क्या हम बेच नहीं सकते उसको? और हम क्यों ना बेचें उसको? अगर हमको नफा में मिल रहा है तो हम क्यों ना बेचें उसको? या रास्ते में बारिश होने वाली है और हमें खतरा है कि मेरा प्याज का नुकसान हो जाएगा, तो हम उसको क्या बेच नहीं सकते हैं? क्योंकि वो तो मेरा हो गया ना, अब तो जिससे हमने खरीदा वो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसी तरह जो शेयर इस तरह हम सीएनसी में खरीदते हैं, वो तो मेरी ज़िम्मेदारी में आ जाती है ना। तो मेरे हिसाब से वो उसको बेचना जायज़ है, ठीक है। लेकिन आप इससे कोई ज़रूरी नहीं कि आप इत्तेफ़ाक करें, अगर आपके पास इससे ज़्यादा मज़बूत दलील है तो आप अपनी दलील पे अमल करें, है ना? तो बस मेरी अपनी बात यहाँ ख़त्म हो गई है। दोबारा एक दफ़ा और आप लोग जुड़ जाइए, अभी के सेशन ख़त्म होने वाला है, कोई सवाल-जवाब होगा तो कर लीजिएगा, ओके? दोबारा फिर ऐड हो जाइए।